So starting with lecture number 2, we left monopoly here. So basically we had to discuss the supply curve. So before we start this, what we were discussing monopoly profits. So on what factors does monopoly profits depend upon? So your reading discusses two cases which were left in the last class, a small portion. Suppose these are the curves. Now, if I have to find the markup, P minus MC upon this. Now, suppose my AC curve is somewhere like this. Let me draw the AC curve with a black, right? So, this becomes my AC here. This is your MC and this becomes your AC. So, in this case, this area becomes your profits. But now, what your reading say that your markup might remain the same, but your AC might change. So, this is your AR, this is your MR, this is your MC. So under this case, what might happen is that this markup P minus MC, suppose this area P minus MC is same, but what might happen is that your AC might be something else. So for example, your AC is like this. In this case, there are no supernormal profits. Or I mean only because P is equal to AC. Then also monopoly might operate. So the whole crux of these two diagrams is that even in spite the fact that markup is same for two firms, there might be a change in AC. So what determines your profits is the relationship between the demand and this should be and the AC curves. So AR and AC का जो relationship है, that very well affects the amount of profits that a monopoly firm will earn. Of course, this markup portion is also important, but even if it is same, then this relationship will determine the profits that a firm earns. Now we move on to the next topic, that is lecture number it's a new topic for lecture number 2, why a monopolist does not have a supply curve. So इसको समझने पहले सबसे पहले समझते हैं सप्लाई कर्व होता क्या है. A supply curve basically shows the relationship between various price levels, price and quantity supplied. So it shows कि different prices पे कितना quantity एक firm supply करेगी. And we know in the literature we have read कि जो तुम्हारा MC curve होता है वही usually supply curve होता है. बट वाई दिस थिंग ब्रेक्स डाउन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वही तुम्हारा सप्लाई कर्व है. क्यों है? बिकॉज दिस इज द प्राइस. ठीक है, हमें पता है कि प्राइस अगर ये है तो एमआर और एआर भी यही है. परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो एम यहाँ पर इतनी क्वांटिटी फर्म सप्लाई कर रही है. सपोज प्राइस बढ़ गया परफेक्ट कंपटीशन में, अब ये क्या है, यही एआर और एमआर कर्व है मेरा, तो वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रही है. तो व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म में, तो तुम्हारा जो एमसी है वही सप्लाई कर्व बन जाता है. Now, why this MC is not the supply curve under monopoly and which one is the supply curve under monopoly? So let's talk of a monopoly. This is your AR curve, downward sloping. Why? Because if the price is less consumers will demand more, right? MR is not equal to AR. Why? Because under monopoly, a monopoly will supply more only when it gets a higher price, right? So in this case, if they want to increase the demand, they will have to reduce the price. So under perfect competition, buyers were buying everything at the given price, but here buyers are not buying everything at the given price. Monopoly is same as industry. Perfect competition में industry और individual level अलग था.
यू रिमेंबर इन द वेरी स्टार्टिंग वी डिड टू डायग्राम्स, ऐसा करके ऐसा प्राइस आ रहा था परफेक्ट कंपटीशन का। इसमें सिर्फ ये इंडस्ट्री लेवल की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्री लेवल में हमें पता है डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उससे कम होता है। वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू increase the quantity demanded, we will have to give a lower price to the consumer, right? This is for the entire market in monopoly. Now, this is your MC curve. Now, this becomes the point of equilibrium. तो ये Q स्टार है और P स्टार है। तो हमारे पास अगर मैं सप्लाई कर्व प्लॉट करती हूँ तो ये एक P स्टार और एक ये Q स्टार हमारे पास आ गया, एक कॉम्बिनेशन, एक पॉइंट आ गया सप्लाई का। अब दूसरा प्राइस, सॉरी दिस वुड बी द प्राइस ना, P स्टार, दिस वुड नॉट बी द प्राइस, तो ये पी स्टार यहाँ आ गया। अब ये पी स्टार और ये क्यू स्टार की हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मिल गई। अब अगर मैं प्राइस कम करूं, मोनोपोली क्यों प्राइस कम करेगा? नहीं करेगा, उसके पास मोनोपोली है। मोनोपोली प्राइस बढ़ाएगा भी नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि उसका प्रॉफिट्स कम होता है। दिस क्यू स्टार पी स्टार इज बेसिकली जो वो प्राइस सिर्फ चार्ज करेगा अगर वो ऑपरेट करेगा। तो किस सर्कमस्टांसेस में मोनोपोली प्राइस चेंज करेगा? सपोज करो मोनोपोली की जो डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। सपोज करो हम देख रहे हैं ये ए आर है, ये दो ए आर है, तो सपोज डिमांड चेंज हो रही है। इस सिचुएशन में व्हाट हैपेंस इज इस वाले कर्व का कुछ रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मोनोपोली तो सिर्फ एक पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, एक प्राइस और एक पॉइंट पे। अगर डिमांड गिवन हम मान रहे हैं तो दैट इज द सप्लाई कर्व। अगर डिमांड चेंज होती है तो सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज नॉट द सप्लाई कर्व, दैट इज नॉट हाउ वी डिफाइन द सप्लाई कर्व। ऑल्सो अगर डिमांड चेंज होती है, सपोज AR1 से डिमांड जो है मेरी AR2 होती है, इन दिस सिचुएशन जरूरी नहीं है कि एक न्यू प्राइस और क्वांटिटी मिलेगा। ऐसा भी हमने सिचुएशंस में देखा है, जैसे हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि एक मोनोपोली सेम प्राइस पे दो डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस करेगा, बट इस कर्व का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इसमें डिमांड चेंज हो रहा है। जब हम सप्लाई कर्व बनाते हैं, जो हम अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं दैट योर डिमांड इज रिमेनिंग द सेम, ओनली द प्राइस इज चेंजिंग। सो वी आर शोइंग दैट एट डिफरेंट प्राइसेस what will the supplier supply at different prices irrespective of the demand. So in this case, supplier will supply only at one point given the demand curve, given the MC curve, and that one point becomes the monopoly supply. And that's why we say a monopolist does not have a supply curve, because he produces only at one MR. For that is the point. Okay. So now we will discuss certain questions. For monopoly, certain examples. तो हमें एक डिमांड कर्व दिया है। इफ यू कैन सी दिस डिमांड कर्व वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक कॉस्ट कर्व दी है। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम। नाउ वी नो दैट अंडर मोनोपोली इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय दिस कंडीशन। सो टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? दिस इज अ फॉर्मूला। हम इस कॉस्ट कर्व को अगर क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो दैट बिकम्स मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.1 क्यू आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। सेकंड, हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन अब हमें पता है जब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो वो क्यू की टर्म्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्यू गिवन है, लेट्स राइट, हम ये इक्वेशन को पी की टर्म्स में निकाल लेंगे। जस्ट अ मिनट। सो दिस वुड बी 2000 माइनस क्यू अपॉन 20। तो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा इस केस में? पीक की वैल्यू रखेंगे 2000 माइनस क्यू अपॉन 20 और क्यू एज इट इज। अब मार्जिनल रेवेन्यू वी नो इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट।
ये होगा, यहाँ पर अभी मैं टोटल रेवेन्यू लिख रही हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, ये वाला इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, व्हाट डू वी गेट? दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू यू गेट। तो अब हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी है, हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी है, ये यहाँ पर भी सेम करा हुआ है, यू कैन मैच सेम आंसर्स है। तो अब यहाँ पर वी नीड टू इक्वेट एम आर टू एम सी। मार्जिनल रेवेन्यू आपने ये निकाला है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी ये है, दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ पर, एंड आफ्टर इक्वेटिंग यू गेट द क्वांटिटी and you get the price. So your P star is 75 and your Q star here is 500. So you have the monopoly, equilibrium, price and quantity. अगर इसको हम diagrammatically दिखाएं, suppose if I want to put it on a diagram, let's do that. ये हमारा AR कर्व है, ये हमारा MR कर्व है, ये हमारा MC कर्व है, और हमारे पास ये क्वांटिटी क्या आई है? The quantity we get here is 500 and price is 75, राइट। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप है मोनोपोली प्रॉफिट्स निकालना। मोनोपोली प्रॉफिट्स निकालने के लिए इस क्वांटिटी के पे हम एमसी कैलकुलेट कर लेंगे। माई एमसी इज 0.1 ऑफ क्वांटिटी, 0.5 इंटू 500, आई गेट 50, सो दिस इज योर 50। So finding the profits, you see here, profits would be, no, this is the MC now, I have to find the profits here. So for profits I need average cost as well, right? So यहाँ पर हमने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करी है, ये कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब एवरेज कॉस्ट एट क्वांटिटी इज इक्वल टू 500, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 0.05 इंटू 500 प्लस 10,000 अपॉन 500, this would be 75 plus 20, this would be 95. There's an error here, ये 25 होगा and this would be 45. So हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आई? 45. So now here ये प्रॉफिट्स इतना है, एवरेज कॉस्ट आपने 45 निकाली, तो ये 75 माइनस 45, 30 इंटू 500, so this would be 15,000. You can cross the check the answer from the book as well. अगर मेरे को डायग्राम में ये दिखाना है, so see my average cost is 45, so that means the curve will cut somewhere here, like this. ये तुम्हारा AC कर्व होगा, और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 45, सो अगर हमारे प्रॉफिट्स को दिखाएंगे, दिस वुड बी द प्रॉफिट डायग्रामेटिकली, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर प्राइस माइनस AC into quantity, which is 500. So this is the first numerical. Now let's come to example number 2, where we discuss a linear demand curve. Just a minute. Where we discuss the लीनियर डिमांड कर्व, दिस इज नोन एज द लीनियर डिमांड कर्व। इसमें प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। अब सिंपल मेथड है, हमें अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस निकालना है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमने सिंपली अभी अभी ये वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, तो उसके लिए सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी चाहिए।
उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय सी, इट इज गिवन। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, मार्जिनल के लिए सबसे पहले टोटल चाहिए। अब हमें पता है कि हमें सब चीजें क्वांटिटी की टर्म्स में चाहिए, क्योंकि हमने आगे जाकर इसको क्वांटिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसको हमने एज इट इज पुट करा। इससे जो मार्जिनल रेवेन्यू, इसको डिफरेंशिएट करा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो इसको पुट करके देखते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी को। हमारा जो एम आर है दैट इज ए माइनस 2b क्यू इज इक्वल टू सी। दिस इज योर मोनोपोली क्वांटिटी। मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। ए माइनस बी क्वांटिटी ए माइनस सी अपॉन 2b। So if you solve it, a minus c upon 2, तो हमारे पास मोनोपोली प्राइस आ गया और मोनोपोली क्वांटिटी आ गई। नाउ लेट्स कैरी फॉरवर्ड इट। यहाँ पर प्राइस एज इट इज लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज, व्हाट वी वांट टू सी इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी वांट टू डू इज कि अगर कॉस्ट बढ़ी तो मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस कितने से बढ़ाएगा अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी। तो नेचुरली अगर हमारे पास प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर मैं डीपी बाई डी सी दिखाऊं तो ये क्या सिग्निफाई करेगा कि एक यूनिट कॉस्ट बढ़ने से प्राइस कितना बढ़ेगा। तो हमारा आंसर जो है वो हाफ आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर मेरी कॉस्ट 1 यूनिट से बढ़ती है, 1 रुपी से बढ़ती है, तो मेरा प्राइस हाफ रुपी से बढ़ जाएगा। So this is the result that we get. सो ऐसा नहीं है कि अगर कॉस्ट बढ़ती है तो पूरा प्राइस जो मोनोपोलिस्ट है वो हमारे कंज्यूमर्स पे पास कर रहा है। ओनली वन हाफ ऑफ इट इज पास्ड in case of a linear demand curve. This result is very much peculiar to the kind of demand curve that you are assuming, and that is linear demand curve in this case. Now let's come to the other case where we assume a constant elasticity demand. In this case elasticity is constant. Elasticity of demand is constant along a demand curve. Now again what we do is that we have to find the marginal revenue, marginal cost and so on, right? इसको फाइंड आउट करने के लिए इस केस में आई विल यूज द इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पेक्युलर टाइप ऑफ डिमांड फंक्शन और इसमें इनवर्स डिमांड निकालने से बेटर वी डू दिस। सो इन दिस केस इनवर्स इलास्टिसिटी रूल है, ये वाला हमने पढ़ा था। यहाँ क्या कर रही हूँ, सी सी की जगह एम आर लिख रही हूँ, राइट? इन केस ऑफ सी, बिकॉज आई नो इन इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड विच आई नो इज इक्वल टू सी, तो मैंने उसकी जगह एम आर लिख दिया। नाउ अ लिटिल मैन्युपुलेशन हेयर एंड देयर एंड आई गेट दिस एम आर। तो हमने ये एम आर डिराइव कर लिया, इक्विलिब्रियम का एम आर है ये। अब जब हम हमारे पास ये एम आर आया, आई नो दैट दिस एम आर इज इक्वल टू योर एम सी। So if instead of MR I write C, or you could have alternative, what you could have done is यहाँ पर अगर हमने डायरेक्टली C की वैल्यू निकाल ली होती इस इक्वेशन से, राइट, दैट वाज आल्सो पॉसिबल। सो you get the equilibrium price in terms of elasticity and marginal cost. Now what you do is you differentiate this price with respect to cost, right? You get this, and of course, you will assume that elasticity is less than 1 minus 1, otherwise our monopolist will not operate. What you will see is that in this case अगर marginal cost बढ़ती है तो monopolist जो price rise करता है absolute terms में बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करूँ इस इलास्टिसिटी इक्वेशन से, दैट इज dp by this and this, so this is nothing but you get 1. So basically what you conclude is that your percentage change in price is equal to percentage change in marginal cost. एब्सोल्यूट टर्म्स में प्राइस का राइज ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज टर्म्स। नाउ
For this, I did not find the MR, I did not find the MC. I just had to do use this inverse elasticity rule, and using this, I got my results. These are just two simple facts that we studied by this example. First fact was कि अगर हमने linear demand curve assume करा है, ठीक है, both cases में MC is equal to C, तो हमारा increase in cost is less than increase in, so basically increase in price is greater than increase in cost. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर हमने कांस्टेंट इलास्टिसिटी एज्यूम करी है तो इस केस में परसेंटेज में दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इंक्रीज इन, इस केस में जस्ट अ मिनट, इंक्रीज इन प्राइस इन लीनियर इज लेस देन इंक्रीज इन कॉस्ट. इस केस में इंक्रीज इन प्राइस इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कॉस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म, बट प्रोपोर्शनल में दोनों का परसेंटेज सेम रहता है. तो दीज वर टू प्रॉपर्टीज, टू things about pricing that we have studied in the that we just analyzed. Now coming back to a new topic, which is resource allocation under monopolies. Basically अब monopoly में problem क्या है? अच्छी बात है किसी को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो इशू क्या है? What is the problem that is happening? If a monopoly is earning large profits, it is also doing R&D. So problems क्या है monopoly में? Why monopoly is bad than perfect competition? For this we need to analyze resource allocation. There's a topic कि we will compare perfect competition in this case with the case of monopoly. We know in perfect competition there are things that happens for AR is equal to MR in perfect competition, and this is also equal to the price. So this happens in perfect competition. In this case, this is the AR is equal to MR curve in perfect competition. Now, in this case, suppose this is the price in perfect competition at which MC is equal to AC as well. Let's draw a curve for understanding this. Now suppose this was your AR is equal to MR. इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ MC इसके इक्वल है. हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में जो फर्म्स है वो कोई प्रॉफिट्स भी नहीं अर्न कर सकती. तो हम क्या देखते हैं कि अगर इस क्यू स्टार पे, इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे अगर हम देखें और इस पी स्टार पे हम देखें, तो P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन. तो यहाँ पर डायग्राम में ये पी स्टार ये है और ये क्यू स्टार ये है, और यहाँ पर वी नो अलोंग दिस एक्सिस MC और AR भी इक्वल है. नाउ कंपेयरिंग इट टू द परफेक्ट कंपटीशन, this is your AR, this is your MR. This is the point of perfect competition, right? Where your AR is equal to MC and AC as well. Now, in monopoly, he produces at MR is equal to Q. He does not produces at P is equal to MC, right? This is not the case. Under monopoly, he produces at this quantity. When he produces at this quantity, this becomes the profit, right? This becomes the profit. अब अगर मैं इसको परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करूं, पहले परफेक्ट कंपटीशन में अगर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, तो ये जो पूरा एरिया है ए ई पी स्टार, दिस वाज द कंज्यूमर सरप्लस अंडर perfect competition. Now after there is monopoly, this A P double star M becomes the consumer surplus under monopoly. सो हम देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस काफी अमाउंट से कम हो रहा है, और वो क्या अमाउंट है? ये एक तो रेक्टेंगल, ये जो हमारा प्रॉफिट्स में गया, और एक छोटा सा ट्राइंगल. सो नाउ व्हाट वी से इज दिस इज नोन एज अ डेड वेट लॉस ऑफ मोनोपोली. जो फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस है वो इतना बड़ा एरिया है. द फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस इज दिस बिग एरिया, बट गेन इन प्रॉफिट्स
is just this small triangle, rectangle, right? So this area, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है AME, दिस इज द डेड वेट लॉस ऑफ मोनोपोली। बेसिकली व्हाट हैपेंस, मोनोपोली की वजह से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं वो किसी के पास नहीं जाते, और वो रीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जब क्वांटिटी डिसाइड करता है तो वो MR और MC जब इक्वेट करता है तो प्राइस भी उसी के इक्वल है। दिस कंडीशन इज वेरीफाइड, बट अंडर मोनोपोली P इज ग्रेटर देन MC, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, इसलिए देर इज डेड वेट लॉस। ऑल्सो व्हाट वी से इज कि ये जो एडिशनल क्वांटिटी यूज हो रही थी, राइट, ये जो इनपुट्स यूज हो रहे थे, नाउ दिस इज नॉट अ डेड वेट लॉस, दिस ये जो ब्लैक में बेसिकली मांगते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू the production of some other goods and services. So this is the value of transferred inputs, and hence it is not a part of your lost consumer surplus. So there are two areas which get lost. One is the consumer surplus, ये जो पूरा loss हुआ है ये, this is the consumer surplus, ये जो rectangle है, this goes into monopoly profits, and ये जो triangle है, that is becomes your dead weight loss. Now let's discuss an example where you have to show the welfare effects of monopoly, कि जब एक मोनोपोली आई तो उस वजह से क्या कौन सा जो कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था उस कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट्स में गया, कौन सा डेड वेट लॉस में गया। सो ये हमारे हमने एक बेसिकली कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम मोनोपोली प्राइस निकालें तो कैसे निकालेंगे मोनोपोली प्राइस, हमें पता है ये इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल है। पहले भी जब हमने ये वाला फंक्शन यूज करा हमने इन्वर्स इलास्टिसिटी रूल यूज करा था। सो इसको यूज करके हमने ये प्राइस निकाल लिया। नथिंग, MC की जगह मैंने C रख दी है और हमने इलास्टिसिटी के टर्म्स में ये PM निकाल लिया है। अब हमारे पास मोनोपोली प्राइस है। व्हेन आई हैव द मोनोपोली प्राइस, सो so now since I have to compare this all with the competitive market, I'll have to also find the consumer surplus that will happen under competitive market, right? So कोई भी कंज्यूमर सरप्लस हमें फाइंड करना होता है, हमें पता है दैट इट इज द एरिया अंडर द डिमांड विच इज गिवन बाय QP कर्व, राइट। एंड ये अगर हमारी क्वांटिटी है, राइट, 0 to Q, सो दिस, अगर मेरा ये प्राइस है तो दिस, वेट, ये मेरा प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो मेरा ये वाला जो एरिया ये बन जाता है कंज्यूमर सरप्लस। सो बेसिकली अगर मैं करूं द एरिया अंडर द डिमांड कर्व अबव दिस प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी आ रहा है और ये P0 है जो प्राइस है मार्केट में। सो नाउ QP की जगह, QP इज द डिमांड फंक्शन, PE मैंने पुट कर दिया, क्योंकि ये जो टर्म है ये प्राइस की टर्म्स में, यूजुअली हम जब भी सॉल्विंग करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं हम क्वांटिटी की टर्म्स में करते हैं, क्योंकि लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने जो एरिया लिया वो प्राइस के टर्म्स में लिया है, तो वी कैन अफोर्ड टू राइट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो व्हेन यू डू दैट you get this function. When you differentiate this function, when you integrate this function, what do you have is you have you have P E plus 1 upon E plus 1। इंटीग्रेशन नॉर्मल है, पढ़ लेना व्हाट हाउ डू वी इंटीग्रेट। ये इन्फिनिटी है, ये P0 है। P में अगर इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, अपॉन में भी इन्फिनिटी आ रहा है, राइट, माइनस P0, सो यू विल गेट दिस आंसर। यहाँ पर माइनस आ जाएगा P0 और यहाँ पर P0 जो भी प्राइस है, राइट, दिस बिकम्स। अब हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में ये जो P0 है, ये जो मार्केट प्राइस है, P0 क्या है, मार्केट प्राइस, वो क्या है, P0 इज इक्वल टू MC इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये P0 की जगह मैंने C लिख दिया, राइट। सो यू कैन फाइंड इट, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस अंडर व्हाट, अंडर perfect competition. Now how do I find this consumer surplus under monopoly? सिमिलरली मोनोपोली के केस में अगर ये P0 था, सपोज करो मोनोपोली ये डिमांड कर्व है, AR कर्व है मेरा, डिमो ये PM है,
तो मेरा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होगा, एरिया अंडर द डिमांड कर्व अंटिल पीएम। राइट, तो बस पी जीरो की जगह या कह लो सी की जगह मैं क्या रख रही हूँ, पी एम रख रही हूँ। तो ये जो हमारा जो डिफरेंशिएशन था पी जीरो से इन्फिनिटी था, ये जो डिफरेंशिएशन है ये पी एम से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब पी एम हमने फाइंड कर रखा है, मोनोपोली प्राइस अंडर दिस हमने फाइंड कर रखा है। तो ऑल आई विल डू इज इन दिस कंज्यूमर सरप्लस का इक्वेशन पी जीरो की जगह आई विल पुट this monopoly price that I just found here. I will put 1. So put 1. आप पुट करोगे so you will see this is the answer, right? So this is your consumer surplus under monopoly. So until now what we have done is हमने linear demand curve का consumer surplus under perfect competition under monopoly. We have also found the PM. Now what the author does is he takes ratio. Basically हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस का जो लॉस्ट पार्ट है, जब ये प्राइस जो मेरा बढ़ा तो क्या था, कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया इस एरिया में। अब हमें पता है ये एरिया दो पार्ट्स में बांटा गया, एक प्रॉफिट्स और एक डेड वेट लॉस। तो हम ये जानना चाह रहे हैं जब कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन है तो ये जो लॉस हुआ कंज्यूमर सरप्लस का, कितना पोर्शन प्रॉफिट्स में गया, कितना पोर्शन बुरा अब ये कंज्यूमर सरप्लस में बच गया, कितना पोर्शन जो है डेड वेट लॉस में चला गया ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस का। तो अगर हम ये रेशियो ले तो हम ये देखेंगे दिस विल बी द आंसर। अब हम एज्यूम कर रहे हैं इलास्टिसिटी -2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यानी कि जो पूरा कंज्यूमर सरप्लस था पहले उसका हाफ एरिया कहाँ चला गया, मोनोपोली प्रॉफिट्स में चला गया। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर एज वी गो अलोंग। So just look into what I am writing. So let's understand this equation to understand that what we are actually doing. ये जो पूरा एरिया था कंज्यूमर सरप्लस का पहले, अब क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस इतना हो गया। ये जो नया कंज्यूमर सरप्लस है इसको मैंने ये बोल दिया, दैट मीन्स दिस एरिया। कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली प्लस ये जो एरिया था ये क्या था, प्रॉफिट्स अंडर मोनोपोली, प्लस ये छोटा एरिया क्या था, डेड वेट लॉस अंडर मोनोपोली। ये पूरा क्या है, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू परफेक्ट कंपटीशन का केस। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस वाले टर्म से। राइट, सो अभी हमने क्या करा, हमने बस इसका एक एलिमेंट फाइंड करा इस इक्वेशन का बाय टेकिंग दिस इलास्टिसिटी। नाउ लेट्स फाइंड द अदर एलिमेंट, इस इक्वेशन का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। लेट्स वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस इक्वेशन कि जो कंज्यूमर सरप्लस पहले था वो कितने तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके एलोकेशन क्या है। प्रॉफिट्स अंडर मोनोपोली, इसके लिए हमारे पास पीएम हमने निकाल रखा है। क्यूएम निकालने के लिए हमें पता है क्वांटिटी इज नथिंग बट पी की पावर ई, तो हमने पी की पावर ई कर दी। ये कुछ नहीं है, दिस इज योर प्रॉफिट्स। तो सॉल्व करके हमारे ये प्रॉफिट्स आते हैं। अब क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को कंज्यूमर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन से डिवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी अगेन -2 लेंगे। वाई, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड दिस सेकेंड टर्म हेयर। इफ यू फाइंड इट यू गेट हाफ। हमारा आंसर आया यहाँ पर हाफ। सो बेसिकली जब मैं इलास्टिसिटी 2 एज्यूम कर रही हूँ, -2 एज्यूम कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये वाला आंसर क्या आया था, हाफ। यहाँ पर ये हाफ आया, ये सॉल्व करके 1/4 आया, और ये अभी हमें निकालना है। सो व्हाट वी फाइंड इज कि after there is a monopoly, half of the area still remains in the consumer surplus. 1/4 of the area goes into monopoly profits,
ये by solving this should come out to be 1/4. So that means how much area goes to the dead weight loss? 1/4. So उसी का सॉल्विंग है, ये वाला एरिया हमने निकालना था. So we find that by this equation that we will find that 1/4 of the area goes into monopoly. So conclusion, when we assumed a constant elasticity of demand function and there is monopoly in in spite परफेक्ट कंपटीशन की जगह हमारे मोनोपोली अगर हो गई, तो कंज्यूमर सरप्लस जो पुराना था, हाफ इसका, ये जो पूरा है हाफ तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली रहता है. इसका जो 1/4 रीजन है वो मोनोपोली प्रॉफिट्स बन जाता है. इसका जो 1/4 रीजन है वो डेड वेट लॉस है, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशनल लॉस ऑफ मोनोपोली. तो कंज्यूमर्स कितना एरिया लॉस कर रहे हैं इस केस में? हाफ एरिया उनके पास चला गया. लेकिन क्या हुआ, ये बस रीडिस्ट्रीब्यूशन है. ये जो हाफ एरिया में से 1/4 है ये तो मोनोपोली के पास गया. तो इसके दो इफेक्ट्स हैं. एक, डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन माने यहाँ पर 1/4 एरिया इस इनके पास चला गया यहाँ से यहाँ. सेकंड, ये जो वेलफेयर लॉस है, किसी के पास नहीं गया डेड वेट लॉस. 1/4 हमारा डेड वेट लॉस है. नाउ दिस वाज अबाउट द बेसिक मोनोपोली. जो बेसिक था कि उसका प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की जगह मोनोपोली होता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल, डेड वेट लॉस, रिसोर्स एलोकेशन एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी मूव टू अ न्यू टॉपिक अंडर मोनोपोली विच इज योर प्रोडक्ट क्वालिटी. Okay, let's do one thing. How much is left? Let's do one thing. This portion is a little tricky. So let's start this in lecture number 3. In lecture number 3, we discuss about product quality under monopoly and how a lot of things are there in this part. It is an interesting and a little tricky topic. So before this, do revise all that has been done until lecture number 2, and then from here onwards, we will take some tricky portions of monopoly. So that was all. Thank you.